We are going to discuss about the challenges of perioperative management of patient with liver diseases. So, started with the number of the patient with the cirrhosis who require surgery is on the rise day by day. Since the prevalence of disease Hep B, C, non-alcoholic condition, alcoholic liver disease, non-alcoholic fatty liver disease and NASH are on rise, although the treatment of the liver disease is again on rise and development is going on, but along with these things the lifespan, because of the increase in development of the treatment modality, the lifespan of the patient with liver disease is increased. So it is expected that you are going to get more patients in different ages of their lifespan in different areas of anesthesia practice. ठीक है, एक डिजीज़ होती है जिसकी ट्रीटमेंट नहीं है तो वो स्टार्ट होती है छोटे लाइफ स्पैन पे, ख़त्म हो जाती है, एंड हो गई, ठीक है. बट if the treatment modality is going on and if the development is going on, it means the treatment जो है उसमें advancement आ रही है, तो somehow the morbidity and mortality is reduced, so the lifespan of the liver patient is increased. Lifespan जब increase होगा तो in different areas, in pre-operative, in pain management, in ICU, in theatre, for different type of surgeries, you will face patient with liver disease. So it is very important to have a good grip of patient with liver disease while treating them in theatre or ICU or even for the pain management or in pre-operative area. Okay. An estimated 1 in 700 patients admitted for elective surgery have abnormal liver enzyme levels. Patients with liver disease are at particularly high risk for morbidity and mortality in post-operative period, both due to stress of the surgery and stress of anesthesia, and due to the magnitude of disease they already have. Further evident in the literature is that decompensated liver increase the risk of post-operative complications like acute hepatic failure. This is one of the most common complications of patient with the liver disease. Infection in any kind of form, including sepsis, without sepsis, bleeding, poor wound healing and renal dysfunction. We are going to discuss this in detail in coming slides. The liver is vital for the protein synthesis. Okay, so when you see the patient, you need to recall that what is the function of liver. So liver is involved in protein synthesis, coagulation, glucose hemostasis, bilirubin excretion, drug metabolism, toxin removal. So you will ask question, you will take a good history, you will do the examination keeping these things in mind. Okay. In general, the liver has substantial functional reserve because the dual blood supply, portal venous, it is supplied by 75% of the portal vein and 25% of the hepatic artery. So it is not expected लाइक लिवर इंजरी अगर आपको किसी पेशेंट में मिल रही है ना, तो आपको ये सोचना होगा कि इससे पहले बहुत डैमेज हो चुका है, अदरवाइज इतनी आसानी से लिवर डैमेज नहीं होगा क्योंकि इसका डुअल सप्लाई है. तो थोड़ी सी भी लेवल्स डिरेंज होने को आपको सीरियस लेना पड़ेगा. Liver disease comprises a large spectrum of the hepatic dysfunction including asymptomatic transaminitis से लेकर जो है severity of transaminitis, फिर cirrhosis and then end stage liver disease. The most common cause of the advanced liver disease कौन कौन से cases मिलते हैं आपको? non-Hep B C cirrhosis मिलता है, तो उसमें कौन से होते हैं? alcohol like पहले कहते थे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यहाँ पे भी बहुत केसेस हमें मिल रहे हैं, सही है. नैश हो गया, फैटी लिवर हो गया, इसके केसेस हमें बहुत मिलते हैं. फिर बहुत सारी कंजेनाइटल कंडीशंस हो गई, सही है. अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, हीमोक्रोमेटोसिस, विल्सन्स डिजीज़, ये सारे केसेस आपको मिलेंगे. तो जब ये पेशेंट आएंगे इन डिफरेंट एरिया फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरी, लैब कोली करा रहे हैं, कोलीलिथियासिस उसके लिए आ रहे हैं, लेप्रोटमी के लिए आ रहे हैं, या कोई माइनर सर्जरी, पेरिफेरल सर्जरीज के लिए आ रहे हैं, तो आपको लिवर की टोटल ग्रिप तो और उसके ये पता होना चाहिए कि हम क्या पूछेंगे, हम मैनेज कैसे करेंगे. ये पेशेंट में आपने बिल्कुल नॉर्मल केस इंड्यूस किया है, कोई मसला नहीं हुआ, उसके बावजूद पोस्ट ऑपरेटिव वो डिकम्पनसेट क्यों हो गया? तो वो इसलिए हो गया, ये हम सारे सवालों के जवाब आगे अभी डिस्कस करेंगे.
So basis of the surgical risk assessment, secondary to the loss of the hepatic reserve capacity and because of the other systemic derangement as a result of liver dysfunction. Patient with the liver disease, they have inappropriate surgical responses, primarily because of the loss of the hepatic reserve, and due to loss of the hepatic reserve there are other manifestation throughout the body system. उनकी वजह से ये दोनों फैक्टर्स मिलके उसका इनअप्रोप्रिएट सर्जिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स शो करते हैं. ठीक है. दीज इंडिविजुअल आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, दे आर कोगुलोपैथिक, दे हैव हाई चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन, इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग होती है इनमें, वुंड पोस्ट ऑफ वुंड हील नहीं होता है. पोस्ट ऑपरेटिव हेपेटिक डिकम्पनसेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एंड हेपेटिक कोमा एंड हेपेटिक डेथ. तो ये सारी चीज़ें हमें पता है. तो इससे पहले इसका हल क्या है ये हमें पता है हो सकती हैं. तो हल क्या है? रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन, गुड ऑप्टिमाइजेशन. जल्दबाजी नहीं करें, जो जस्टिफाइड सर्जरी वो करानी है तो करानी है, अदरवाइज अ गुड ऑप्टिमाइज पेशेंट अच्छा आउटकम देगा. Prediction of surgical risk is based on the degree of the liver function and the type of surgery, anesthesia, stress and preclinical condition of the patient. एक patient है जिसे mild transaminosis है, उसके थोड़े से hepatic levels LFTs derange है, और एक patient है जिसको proper जो है cirrhosis हो चुका है. ठीक है, वो चाइल्ड क्लास के में बी है या सी है, तो उन दोनों का आउटकम वेरी करेगा फॉर द सेम सर्जिकल स्ट्रेस, फॉर द सेम एनेस्थीसिया स्ट्रेस. ठीक है, तो ये तीन फैक्टर मिलके पेशेंट के आउटकम को बताते हैं. लिवर डिजीज कैन अफेक्ट ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन सिस्टम इंक्लूडिंग बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कार्डियो, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, ब्रेन, रीनल. क्यों, क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं? ब्रेन में क्या इफेक्ट होता है? रीनल में हेपेटोरेनल सिंड्रोम एंड अ नंबर ऑफ कंडीशन दैट कॉजेज रीनल डिरेंजमेंट. ठीक है, सिर्फ एक नहीं होती, और भी बहुत सारी होती हैं. ठीक है. सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ऑफ लिवर लाइक कोएगुलोपैथी, इंट्रावेस्कुलर और रीनल फंक्शन, ये हम आगे डिस्कस कर रहे हैं. देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस इज़ वेरी कॉम्प्रोमाइज. मैल न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन. Issues too. So a good anticipation of these clinical condition and preparation is mainstay of the treatment. Okay, so any patient coming to you with the liver disease for any kind of surgery, you need to check this. If the patient have acute hepatitis, don't go for it because it is the acute condition until unless there is emergent surgery. ठीक है, इमरजेंसी के अलावा डोंट डेफर इट अंटिल 30 days after the enzymes return to normal. Yeah, you need to monitor it. Not till 30 days, इसकी लिटरेचर में नहीं है, सही है, बट फॉर सम टाइम until the transaminitis is resolved. Fine, ठीक है. तो आप इसकी टेस्ट का करें. देन चाइल्ड क्लास C, don't go for it until it is defer elective, until the child class improves और यू स्टार्ट सम मेडिकल मैनेजमेंट. आपने लूप में ले लिया, अब चाइल्ड क्लास सी है तो क्या क्या होगा उसे? हो सकता है उसे इंसेफ्लोपैथी हो सकता है उसे एसाइटिस हो सकता है वो कोएगुलोपैथिक हो. तो आपको ये सारी क्लिनिकल कंडीशंस को करेक्ट करना होगा ना, या उसके जो भी इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मैलिटीज़ है, AKI के फेज़ में है, तो इन सब की क्लिनिकल कंडीशन को आपने ऑप्टिमाइज़ करना है. वंस इट इज़ ऑप्टिमाइज देन गो फॉर द सर्जरी इफ़ इट इज़ नॉट इमरजेंट एंड इफ़ इट इज़ इलेक्टिव. देन सिरहोसिस, चाइल्ड ए और बी की बात कर लेते हैं. चाइल्ड ए और बी के अंदर नाउ करेक्ट द क्लिनिकल कंडीशंस लाइक कोएगुलोपैथिक. मेन यही होती है, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मैलिटी है. कोएगुलोपैथी ये कैसे करेक्ट करोगे? क्या करोगे? विटामिन के से ट्रीटमेंट करेंगे जो हम ICU में करते हैं. विटामिन के देते हैं, फिर FFP को कंसिडर करते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट्स को भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो है DDAVP को भी, डेस्मोप्रेसिन को भी कंसिडर कर सकते हैं, पर वो सिर्फ फैक्टर 8 के लिए, और वो सर्जरी में से हम उसमें जो डेंटल सर्जरीज है ना उसमें ज़्यादा रोल है. ठीक है, हाँ. और अच्छा, फिर आप आ जाएं एनसेफ्लोपैथीज़ के ऊपर. एनसेफ्लोपैथीज़ को हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट कर देंगे एंड प्रिवेंशन ऑफ दोज फैक्टर्स दैट एग्रवेट एनसेफ्लोपैथी. व्हाट आर दोज फैक्टर्स? एजोटीमिया हो गया, GI ब्लीड को अवॉइड करें, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को अवॉइड करें, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, अवॉइडेंस ऑफ सेडेटिव, बार्बिचुरेट्स, नारकोटिक एजेंट्स, तो इनके डोजेस एडजस्टमेंट करें अगर ज़रूरी हैं तो. SITs में क्या करेंगे?
aggressive diuretic treatment and paracentesis with or without paracentesis with ascitic abdomen आपको elective surgery को proceed करना मतलब बगैर medical management के करना is not justified. ठीक है, if you see there is huge abdomen and paracentesis is possible, take in loop and some internist, start diuretic treatment and the combination of the treatment, and once the treatment is started and the paracentesis is being done, then you can proceed with the elective surgical procedure. लार्ज वॉल्यूम पैरास ये हो गया. ओके, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, ये सारी उसकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अंदर आ रहे हैं. अच्छा, नाउ कमिंग टू द क्वांटिटेटिव रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन. क्वांटिटेटिव रिस्क में कौन कौन से आते हैं? मोस्ट कॉमन चाइल्ड्स क्लासिफिकेशन. ठीक है, चाइल्ड्स क्लासिफिकेशन में आपके कौन से 3 बायोकेमिकल फैक्टर्स होंगे, 2 क्लिनिकल फैक्टर्स होते हैं. इनकी बेसिस के ऊपर हम चाइल्ड्स क्लासिफिकेशन जो है वो एक स्कोर डिसाइड करते हैं. इट इज़ नॉट दिस मच रिलायबल, लेकिन जितने हमारे पास स्केल हैं उनमें जो 1-2 का जिक्र है तो उनमें एक चाइल्ड्स है और एक हम अभी आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो चाइल्ड्स ए है, इट इज़ एस्टिमेटेड 10% मोर्टेलिटी आफ्टर. अच्छा, ये जितने ये जो मोर्टेलिटी का हम जिक्र कर रहे हैं ये ज़्यादातर एब्डोमिनल सर्जरीज का जिक्र है. ठीक है, ये पेरिफेरल सर्जरी का हम जिक्र नहीं कर रहे. तो 10% मोर्टेलिटी है एब्डोमिनल सर्जरी के बाद. चाइल्ड्स बी में 30-31% है और सी के अंदर 76 से 82%. आगे टेबल उसमें ज़्यादा क्लियर हमें पता चल जाएगा. सही है, अब आपने ए 5 to 6 पॉइंट्स हैं तो चाइल्ड्स ए है, बी 7 to 9 पॉइंट्स पे कहेंगे और सी 10 to 15 पॉइंट्स के ऊपर कहेंगे. ठीक है, और ये वो सारे फैक्टर्स हैं कि एसाइटीज़ को आपने चेक किया है, नैन कंट्रोल विद डायरेटिक, पोरली कंट्रोल है, एंसेफलोपैथी के ग्रेड्स के हिसाब से कर दिया, बिलिरुबिन, एल्बुमिन, INR. इज इट ओके? ओके, ठीक है. तो दूसरा है मेल्ड स्कोर, मॉडल ऑफ फॉर एंड स्टेज लिवर डिजीज. MELD score was originally developed to predict short-term mortality for patient under TIPS placement. ठीक है, हर ये जो दोनों स्केल्स हैं ये अपनी अपनी किसी प्रोसीजर के ऊपर स्टार्ट हुए थे और फिर लेटर ऑन इस जैसे डिफरेंट वैलिडेटेड टूल्स हैं हम डिफरेंट सर्जरीज पे लगाते हैं, फिर रिसर्चेस करते हैं, फिर उसके रिसर्चेस के रिजल्ट्स को कंपाइल करते हैं और फिर एविडेंस एक बनता है. ठीक है, तो ये स्टार्ट यहाँ से हुआ था. MELD score is based on patients' serum bilirubin, creatinine, INR, and it is calculated as this: 3.8 times bilirubin plus 11.2 times INR plus 9.6 times creatinine value. ठीक है, अच्छा. MELD score originally include the etiology for the liver failure, but this criteria was subsequently dropped from the equation because it was prognostically insignificant. अच्छा, MELD स्कोर को जब हम लिटरेचर में सर्च करते हैं ना तो इसके हर तरह के आपको वो मिलेंगे. एक तो डिफरेंट सर्जरीज पे डिफरेंट स्कोर पता चलेगा. ये जैसे कुछ सर्जरी पे लिखा हुआ था कि भाई लेस देन 9 है आउटकम अच्छा है, मोर देन 15 है आउटकम बुरा है, 9 से 15 में आउटकम बेटर है. ठीक है, फिर दूसरी सर्जरीज में लेस देन 5 पे आउटकम अच्छा है. तो इसकी हर सर्जरी के हिसाब से जो है और इसके नहीं तकरीबन हर स्केल के बारे में ऐसा ही जिक्र होता है. तो डिफरेंट वो मिलेंगे. कुछ अच्छे लिटरेचर्स हैं जो कि इसके फेवर में बात करती हैं, कुछ ऐसी लिटरेचर जो इसके फेवर में नहीं बात करती है. फिर इसका और चाइल्ड्स क्लासिफिकेशन का कंपैरिजन आपस में तो कुछ कहते हैं ये अच्छा है, कुछ कहते हैं ये अच्छा है. तो आप अपने सिस्टम के हिसाब से एक चीज़ को डिसाइड कर लें. ठीक है, आपकी इंस्टीट्यूशनल कोई पॉलिसी होनी चाहिए, आपका अपना जो है ना एक डिपार्टमेंटल पॉलिसी होनी चाहिए कि हम ये करेंगे ताकि जब आप एक बंदे से दूसरे बंदे पे ओवर दें तो ये नहीं कि एक चाइल्ड्स पे स्कोरिंग कर रहा है और दूसरा दूसरे स्केल पे कर रहा है. ठीक है, तो इफ़ यू गो फॉर चाइल्ड्स क्लासिफिकेशन तो फिर उसको करो. तो इसका एक डिपार्टमेंटल रूल हो तो बेहतर है और फिर आप उसको सीक्वेंस वाइज के एक बार किया, फिर दूसरी बार रीअसेस किया, फिर तीसरी बार रीअसेस किया. तो इस तरीके से जो है आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी. अ MELD स्कोर ऑफ लेस देन 8 प्रिडिक्ट गुड आउटकम फॉर द टिप्स, मोर देन 18 प्रिडिक्ट पुअर आउटकम, बेस्ट आउटकम सीन विद लेस देन 14. अच्छा, एक चीज़ होती है IMELD, हो सकता है ये थ्योरी वगैरह में इंटीग्रेटेड MELD. इसमें MELD स्कोर में आप एज और सीरम सोडियम लेवल्स को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं. ठीक है, ओके. तो तीसरा जो क्वांटिटेटिव वो है स्केल होगा तो वो होगा ASA क्लासिफिकेशन. ठीक है, इट इज़ अ वेरी गुड, ASA तो वेरी गुड प्रेडिक्टर है.
ठीक है। आप पोस्ट ऑपरेटिव मोर्टेलिटी को इसमें देखेंगे कि ए से क्लास ग्रेटर देन 2 इंक्रीज द रिस्क ऑफ 1.5 से 3.2 फोल्ड. It is also important to have pre-operative cardiopulmonary evaluation by functional class. आप फर्दर स्ट्रेस टेस्टिंग या एको वगैरह ये उसी वक्त करवाएंगे जब रिक्वायर्ड होगा. चलें अब आप देख लेते हैं प्री ऑपरेटिव assessment and management. A patient is coming to you who is asymptomatic. It's the most difficult patient क्योंकि पहले से जो डायग्नोस आता है उसमें तो आधे से ज़्यादा चीज़ें हो चुकी होती हैं. ये सबको पता होता है भाई ये लिवर का कॉम्प्रोमाइज़ है, लिवर कॉम्प्रोमाइज़ है. एसिम्प्टोमेटिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इसी में आपकी क्लिनिकल मैनेजमेंट और वो जो इनिशियलाइज करने वाली चीज़ें ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सही, तो डोंट इग्नोर इट. अ प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग जो कि तकरीबन हर केस में होना चाहिए, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक केस में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है ना. आपको हिस्ट्री मिलेगी नहीं, आप ही लेंगे. ठीक है. फिजिकल एग्जामिनेशन, कीपिंग ऑल द साइन एंड सिम्टम्स इन माइंड, कीपिंग द फंक्शन ऑफ द लिवर इन माइंड. वही आप उसके हिसाब से ही हिस्ट्री लेंगे और उसके हिसाब से एग्जामिनेशन करेंगे. ठीक है. टारगेटेड क्वेश्चन. रिस्क फैक्टर फॉर द लिवर डिजीज शुड बी एक्सप्लोर्ड. एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? एनी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, टैटूज, इलिसिट ड्रग यूज, सेक्सुअल हिस्ट्री, अल्कोहल यूज, personal or family history of the jaundice, any congenital problems. So you will ask about the over the counter drug use and herbal medication. Physical signs suggestive of the liver diseases वो क्या क्या होंगी? Hepatosplenomegaly, spider नेवाई, जॉन्डिस, गायनिकोमेसिया, पामरेथमिया. तो ये सारे जो केसेस जो आपने एक एग्जामिनेशन किए हैं तो वो आप दिमाग में रखेंगे एंड यू लुक फॉर द प्रेजेंस ऑफ दीज कंडीशंस. Then routine preoperative testing of liver function is not recommended because the low prevalence of the. It is not expected कि अगर patient है उसके पास clinical examination पे आपको नहीं मिल रहा है अगर patient में कोई liver की, तो it is not expected कि उसमें biochemical derangement होगी. ठीक है. और अगर किसी में clinical नहीं है लेकिन biochemical derangement है तो don't go for the case, क्योंकि इसका मतलब कि कोई मसला है. सही है. proper workup of the patient क्योंकि usually asymptomatic patient with significant abnormal liver function should have their elective surgery postponed and their liver disease investigated. Their perioperative risks should be assessed after their liver function is characterized. ठीक है. Then acuity of the condition कि कितना फास्ट वो डेवलप हुआ है. तो फल्मिनेंट कंडीशंस हो गए, फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर्स हो गए, अक्यूट एल्कोहलिक हेपेटाइटिस या अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस. पेशेंट विद दीज कंडीशन टेंड टू हैव मोर्बिडिटी रेट हायर देन दोज विद द क्रॉनिक कोलेस्टैटिक कंडीशन एंड देयरफॉर इट इज़ प्रूडेंट टू पोस्टपोन द सर्जरी. ठीक है. फल्मिनेंट की हमें पता है ना, अक्यूट कंडीशंस में हम नहीं कराएंगे चाहे वो फल्मिनेंट है या नहीं है. अक्यूट कंडीशंस में इट इज़ वाइज टू पोस्टपोन इलेक्टिव प्रोसीजर. रिस्क वर्सेस बेनिफिट के ऊपर हम डिसीजन ले सकते हैं कि अगर सर्जरी छोड़ने से नुकसान ज़्यादा है या इसको रोकने से नुकसान ज़्यादा है. पेशेंट विद क्रॉनिक लिवर डिजीज विद प्रिजर्व हेपेटिक फंक्शन मे नॉट हैव एन इंक्रीज ऑपरेटिव रिस्क बट द इंडिविजुअल नीड टू बी क्लोजली इवैल्यूएटेड एज वेल. Severity and specific derangement of the known chronic liver. Optimal preparation of the surgery appropriate addresses the primary feature and secondary feature. अच्छा, अब आपको डायरेक्ट उस पे आते हैं. So in preoperative phase you can have a number of problems in patient with the liver disease. One of the problem is coagulopathy and thrombocytopenia. What is the reason of coagulopathy over here? Because all the clotting factors are made by the liver. Synthetic function and malabsorption of vitamin K and malnutrition. So all these three factors they cause coagulopathy. What is the reason of thrombocytopenia? Hypersplenism, liver. Yes. तो वो प्लेटलेट्स को जो है कैच कर लेगी और उसकी वजह से ही होगा. ठीक है. सो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? स्टार्ट विद द विटामिन के. इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटिंग गो टू द FFP, कंसिडर क्रायोप्रेसिपिटेट और फिर जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से चलेंगे. ठीक है. DDA-VP का रोल है कि अगर प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं. और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कहाँ करेंगे? इट डिपेंड कि आप कौन सी सर्जरी करा रहे हैं, उसके लिए कितना लेवल रिक्वायर्ड है, पेशेंट की क्या कंडीशन है, बेस लाइन प्लेटलेट्स की. ठीक है. तो ये ट्रांसफ्यूजन ऑफ प्लेटलेट्स ये ऐसा नहीं है कि हाँ अच्छा ये इसके काम में करा दो. नहीं, ये डिसीजन होता है कि हम कौन सी सर्जरी करा रहे हैं. माइल्ड कोई मेजर सर्जरी करा रहे हैं या मॉडरेट है. हम रिस्क असेसमेंट करते हैं और उसके हिसाब से पेशेंट का बेसलाइन लेवल देखेंगे, उसके कितने कम है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है और फिर उसकी बेसिस पे डिसाइड करेंगे. ये टेस्टिंग होती है, हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है. टेस्टिंग होती है, पता चल जाता है. SITs.
ठीक है। तो एसाइटिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू असेस एंड मैनेज बिफोर सर्जरी बिकॉज इट कॉज वुंड डिहिसेंस, एब्डोमिनल वॉल हर्निएशन एंड हमारे लिए क्या ज़्यादा मसला है, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। सो ट्रीटमेंट क्या आती है, स्टार्ट विद द एग्रेसिव डायूरेटिक, इसमें हम फ़ौरन डाल देते हैं, फिर कंसिडर करते हैं कि भाई टैप कराओ नहीं कराओ, टैप वाले को बुलाओ, ठीक है, ये होता रहता है। लो सोडियम डाइट देते हैं, फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करना है नहीं करना है, फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, इंट्रा ऑपरेटिव रिमूवल भी। अच्छा अब एक वो हो गया, तो ये एक ऑप्शन होता है, इंट्रा ऑपरेटिव रिमूवल होता है लेप्रोटमी की केसेस में, उस वक्त आपको फ्लूइड मैनेजमेंट का ख्याल रखना होता है। Since the patient is on diuretic, you need to monitor serial, creatinine and electrolyte. Correct the electrolyte abnormalities. It is important to take note of the volume of the fluid removed and patient's baseline renal function. To consider albumin replacement to maintain intravascular volume. And जब आप पैरासिंथेसिस इंड्यूस सर्कुलेटरी डिस्फंक्शन होगा ना, तो उस वक्त आपको मैनेज करने पड़ेंगी ये चीज़ें। Encephalopathy. So multiple factors in the preoperative and postoperative period may precipitate encephalopathy. And what are those factors? Presence of infection, either sepsis, diuretic, hypokalemia, metabolic alkalosis, constipation, CNS के depressant का यूज़ आप कर रहे हो, पहले से कोई बार्बिटूरेट पे है या नार्कोटिक्स के ऊपर है, हाइपोक्सिया, एक्सोटीमिया, GI ब्लीडिंग, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो एग्रावेट करते हैं। तो हम इन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, और लेक्टुलोज स्टार्ट करेंगे। और रिफैक्सिमिन एक एंटीबायोटिक है जो कि पुअरली एब्जॉर्ब है, जिसका लिटरेचर में नाम है। रीनल डिसफंक्शन, सो पेशेंट विद क्रॉनिक लिवर डिजीज दे हैव सम रीनल डिसफंक्शन एट बेस लाइन ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर। व्हाट आर दोज फैक्टर? दे हैव hemodynamic, like they have propensity of hemodynamic derangement, so there will be hypoperfusion of the renal hypoperfusion, and this cause it, ठीक है। Secondary, they are on diuretic, the use of nephrotoxic agent like NSAIDs, लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस होती रहती है इनकी विदाउट एल्बुमिन, उसमें ये चांस हो सकता है। दे हैव प्रोपेंसिटी टू हैव इन्फेक्शन, GI ब्लीडिंग, ये सारे फैक्टर्स मिलके जो है और ज़्यादा रीनल डिसफंक्शन को कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड द हेपेटोरीनल सिंड्रोम जो कि तुम लोग बोल रहे थे, द रिस्क ऑफ द रीनल डिसफंक्शन इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ हेमोडायनेमिक चेंजेस एंड फ्लूइड शिफ्ट और लॉसेस। So very important attention should also be given to the fact that serum creatinine level often overestimate the GFR. तो अगर आपको normal creatinine की वो मिल रही है, वैल्यू मिल रही है, तो it doesn't mean कि वो normal उसके renal functions होंगे, ठीक है। तो ये overestimate कर रहा होता है GFR को liver के patient। has to be gone before. Yes. Pulmonary diseases. So these are the three conditions that is most commonly associated with patient with liver disease: hepatopulmonary syndrome, portopulmonary hypertension and hepatic hydrothorax। अच्छा, क्या होती है हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम में? मसला क्या होगा? हम सिंड्रोम नहीं पढ़ रहे, तुम लोगों को क्या किस चीज़ से लगेगा ये हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम क्या होगा, होता क्या है? ऐसे खास vasodilators और metabolites release होती है, उससे pulmonary vasodilation होता है। शंटिंग होती है, हाँ, वो बिल्कुल वो नहीं है। हम बेसिक जो इंपॉर्टेंट होती है वो वैस्कुलर शंट्स होते हैं, ठीक है। वैस्कुलर शंट्स होंगे, VQ मिसमैच होगा, ठीक है, हाइपोक्सिया वगैरह आपको मिलेगा, तो ये हमें पता चलता है हमें वेंटिलेशन में इश्यूज़ होंगे, ठीक है। अच्छा, पोर्टोपल्मोनरी हाइपरटेंशन में क्या होगा? पोर्टोपल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो राइट हार्ट के ऊपर वो पड़ेगा, तो राइट हार्ट फेलियर के साथ वो प्रेजेंट करेगा। पोर्टो और पल्मोनरी राइट हार्ट फेलियर वाली चीज़ें होंगी सारी, ठीक है, राइट हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होंगे। और अगेन जो है हाइपोक्सिया होगा। हेपेटिक हाइड्रोथोरैक्स ये मोस्ट कॉमनली जो है राइट साइड पे होता है, यूनिलैटरल होता है। अगर आप इसे ड्रेन भी करा देते हैं तो रिकर हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम क्लिनिकली नहीं होता, ये इतना कॉमन नहीं है। मेल न्यूट्रिशन, सो सिवियर मेल न्यूट्रिशन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज ब्लड एंड कंपोनेंट थेरेपी इन पेरी ऑपरेटिव फेज, स्पेशली ट्रांसप्लांटेशन के लिए कहते हैं, लेकिन ये थ्रू आउट मतलब पूरी पेरी ऑपरेटिव फेज में फॉर एवरी सर्जरी होता है। अच्छा, डिजीज स्पेसिफिक कंसिडरेशन, पेशेंट विद ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस ऑन डेली स्टीरॉयड। अब पेशेंट आ रहा है तो आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा? ऑलरेडी स्टीरॉयड ले रहा है, तो हम क्या करेंगे? बीइंग एन एनेस्थेटिस्ट, पेशेंट ऑन स्टीरॉयड, So we have to continue. हाँ, स्ट्रेस के लिए क्या करते हैं?
हाँ, तो हम एक एडिशनल डिपेंडिंग कैंडिडेट पढ़ लो ना, स्ट्रेस डोज स्टीरॉइड देंगे, ठीक है। तो जो स्टीरॉइड के ऊपर ऑलरेडी होंगे, तो ये आपको दिमाग में रखना है कि अगर लिवर प्रॉब्लम के साथ कोई पेशेंट आ रहा है, तो देखो लिवर प्रॉब्लम तो एक जनरल टर्म है ना, तो यू नीड टू नो कि विच लिवर प्रॉब्लम वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड इफ इट इज़ autoimmune condition and the patient is already on steroid, you need to consider steroid, you need to consider this thing, ठीक है। D-penicillamine can impair wound healing. Patient taking it for Wilson's disease should decrease their dose for 1 to 2 weeks pre-operatively and post-operatively, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। Wilson disease might predispose to increased risk of neurological changes, so this is one of the risk factor. You need to explain this to the patient, you need to keep this in mind. Patient with hemochromatosis should be assessed for history of extrahepatic hemochromatosis complications such as diabetes and cardiomyopathy. Patient with history of alcohol abuse are at increased risk of complication including poor wound healing, bleeding, delirium, infection. Patient who have continued to actively drink are at increased risk for withdrawal as well. तो अब alcohol उस केसेस आपके पास पेशेंट आता है, तो आपको उसके स्टेटस का भी पता करना है कि ये कितने अरसे से नहीं ले रहे, या अगर कंटिन्यू है तो क्या हो सकता है। तो उस पॉसिबिलिटी को एंटिसिपेट करना और मैनेज करना, ये भी हमारा काम है, क्योंकि आईसीयू में आते हैं मोस्ट लाइकली, बहुत लो थ्रेशोल्ड रखते हैं लिवर के पेशेंट्स आईसीयू में आने का, ठीक है, और हम भी शिफ्ट करने का। Intraoperative factors for our anesthesia consideration. Patient with liver disease are more likely to have hepatic decompensation, ठीक है, one of the most common complication. General anesthesia reduce कर देता है total hepatic flow को। So क्यों होती है decompensation, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ये तो एक बात होगी कि hepatic decompensation after general anesthesia, ठीक है। What are the factors behind? What are the factors? Because general anesthesia reduce the total hepatic flow. Although इसका डुअल ब्लड सप्लाई है, लेकिन फिर भी जो है अफेक्ट होता है। सेवरल बेसलाइन कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मैलिटीज़ होती हैं इसमें, जो कि डिक्रीज, जैसे कि सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस रिड्यूस होता है, इंक्रीज कार्डिक इंडेक्स है, ये वो फैक्टर हैं जो फर्दर हिपैटिक ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर देते हैं। तो एक जीए का फैक्टर हो गया, एक उसका अपना इनेट उसका हिपैटिक फैक्टर्स हो गए, ये दो। देन कैटेकोलअमीन और न्यूरोह्यूमरल फैक्टर्स, सही, ये हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट में रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट, सर्जिकल स्ट्रेस मैनेजमेंट इज एबनॉर्मल, तो इनमें कैटेकोलअमीन एंड अदर न्यूरोह्यूमरल रिस्पॉन्सेज आर इम्पेयर्ड एज वेल, जिसकी वजह से ये तीसरा फैक्टर हो गया ब्लड फ्लो रिड्यूस करने का। तो होना तो फेलियर है, होना हिपैटिक डीकॉम्पनसेशन है, पर उसका एक फैक्टर जी आ गया, दूसरा फैक्टर जो है उनका स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ह्यूमरल रिस्पॉन्स आ गया, तीसरा फैक्टर जो है वो सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस वाले आ गए, ठीक है। एनेस्थीसिया को सिंपैथेटिक ब्लॉकेज, और सिंपैथेटिक ब्लॉक होगा रिजल्ट ऑफ दिस रिडक्शन इन हिपैटिक परफ्यूजन एंड ड्रास्टिक लॉस ऑफ द रिमेनिंग मार्जिनल हिपैटिक फंक्शंस, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर हाइपो परफ्यूजन करा रहे हैं। फाइन, आगे हम सर्जिकल रिस्पॉन्सेज को भी पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा व्हाट आर द अदर फैक्टर्स? हाइपोएल्बुमिनीमिया इम्पेयर ड्रग बाइंडिंग एंड मेटाबॉलिज्म एंड एलिवेट सीरम ड्रग लेवल्स, समझ में आया, ठीक है। तो हमारी जो ड्रग्स जो हम दे रहे हैं उनकी भी ऑल्ट्रेशंस हो जाएगी। फाइन, तो इम्पेयर ड्रग मेटाबॉलिज्म हो जाएगी आपके पास, डिटॉक्सिफिकेशन, एक्सक्रीशन ऑफ द लिवर, इनहेलेशनल एजेंट एंड लिवर डिजीज। सेफेस्ट कौन सा है? आइसोफ्लोरिन, और सबसे ज़्यादा जो है हेलोथेन और एनफ्लोरिन, एन डेसिन, सीवे और डेस इन दोनों के बाद आता है, ठीक है। तो द वर्स्ट में अगर आप कहेंगे तो हेलोथेन, एनफ्लोरिन, फिर उसके बाद डेस और सीवो, और बेटर जो कहते हैं कि गुड इनहेलेशनल एजेंट फॉर पेशेंट विद द लिवर डिजीज इज आइसोफ्लोरिन। फाइन, मसल रिलैक्सेंट्स क्या इफेक्ट आएगा? तो जितने मसल रिलैक्सेंट हैं उनका डिपेंडेंस आपके पास लिवर के ऊपर है, ठीक है। हिपैटिक एक्सक्रीशन है, हिपैटिक एक्सक्रीशन तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, ठीक है। सो यू विल गो फॉर दैट्रिक्यूरियम बिकॉज इट हैव हूफमैन्स डिग्रेडेशन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेडेटिव्स एंड एनाल्जेसिक्स। अवॉइड नहीं देंगे, नहीं अवॉइड, यूजुअली कहते हैं 50% ऑफ द डोज तो,
ठीक है। इवन इनका जो मसल रिलैक्सेंट और बकिया जो है ड्रग्स के मामले में कहते हैं कि 50% ऑफ द डोज दें आप, ठीक है। इनहेलेशन एजेंट तो दे रहे हैं पर ये कि मिनिमल, क्योंकि हर चीज़ का जो है ऑलरेडी इनका कार्डियक कॉम्प्रोमाइज स्टेटस मिलेगा, तो इसलिए मिनिमल रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रग होगी, ठीक है। तो अगर हम बार्बिचुरेट्स की बात कर लेते हैं या एनाल्जेसिक्स नारकोटिक्स की बात कर लेंगे तो हाँ मॉर्फिन अवॉइड करें, अगर देना ज़रूरी है, नहीं है कोई ऑप्शन आपके पास तो फिर आप क्या करेंगे, मॉर्फिन मेप्रिडीन दोनों के बारे में ये है, ठीक है। तो बेटर नारकोटिक कौन सा है? फैंटेनिल, ठीक है। रेमी हमारे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन फैंटेनिल भी लिटरेचर में भी फैंटेनिल ही है, ठीक है। तो बार्बिचुरेट्स का जिक्र अगर करें तो बार्बिचुरेट्स, नारकोटिक, ड्रग्स, इनको आप 50% रिड्यूस कर दें। सर्जरी, द टाइप ऑफ द सर्जरी इज पोटेंशियली एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव हेपेटिक डिसफंक्शन। एक लेप्रोटमी करा रहे हो और एक लैप्रोली करा रहे हो, बहुत फ़र्क है, ठीक है। या एक लेप्रोटमी और एक हर्निया कर लेते हैं क्योंकि लैप्रोली में CO2 का फैक्टर आ गया, उसे हटा लेते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना जो है सिवियरिटी, वो कितनी मेजर सर्जरी है। बिकॉज ऑफ द ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल विसरा, इंट्रा एब्डोमिनल ऑपरेशन आर मोर लाइकली देन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल सर्जरी टू कॉज रिफ्लेक्स सिस्टमिक हाइपोटेंशन, ठीक है। ये वो प्रॉब्लम होती है जो कि सब्सिक्वेंटली हिपैटिक ब्लड फ्लो को रिड्यूस करती है। अभी हमने एनेस्थेटिक फैक्टर पढ़े थे, अब हम ये करें, वो खींच खींच के ट्रैक्शन लगाते हैं, जब खींच खींच के ट्रैक्शन लगाते हैं तो ये होता है, इसकी वजह से लिवर में ब्लड सप्लाई नहीं होगा। हाइपरकार्बिया इंड्यूस, ये वाली कंडीशन, इसलिए मैंने कहा था लैप्रोली को हटा लो अभी। हाइपरकार्बिया इंड्यूस स्प्लैंक्टिक वैसोकंस्ट्रिक्शन इज ऑल्सो अ थ्रेट टू हेपेटिक परफ्यूजन, ठीक है। Surgeries that result in large amount of the blood loss increase the risk of ischemic hepatic injury and can intraoperative hypotension, ठीक है। इनमें ब्लीडिंग प्रोपेंसिटी तो होती है, सही, कोएगुलोपैथिक भी हैं, सही है। उसके अलावा ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी इसमें मिल रहा है, साथ में आप ऐसी सर्जरी करा रहे हैं जिनमें मेजर ब्लड लॉसेस होंगे, तो वो जो और कॉम्पनसेशन तो इनकी वो है डिरेंज हुई हुई है जो हमने पीछे पढ़ी है। तो वो सारे फैक्टर्स मिलके जो है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉसेस, एनी सर्जरी विच हैव लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉसेस, तो उसमें और ज़्यादा ब्लड लॉस होने के चांसेस हैं। जब ब्लड लॉस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगी। Sufficient surgical hemostasis and autologous platelet-rich plasma have been demonstrated to be useful for the prevention of massive hemorrhage। तो इतने सारे फैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं जो कि ब्लीडिंग करवा रहे हैं, तो अब उसमें एक हल ये है कि वेरी गुड सर्जिकल स्किल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सर्जिकल हीमोस्टेसिस और फिर प्लेटेड रिच प्लाज्मा का रोल है। ऑल्टरनेटिव ऑप्शन टू द सर्जरी, नो सर्जरी से सर्जरी के बीच के फिर ऑप्शंस आए, और वो ऑप्शंस क्या हैं जो कि आप लोग आए दिन कराते हैं ERCPs वगैरह, ये वो ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो रिलेटिवली नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स और एडवांसेस इन मेडिकल मैनेजमेंट हैव रिप्लेस्ड द सर्जिकल इंटरवेंशंस फॉर मैनी कंडीशन। कौन सी कंडीशन है, एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है, रिफ्रैक्टरी वेरिसियल हेमरेजेस हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। सो टिप्स हैज़ बिकम द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर मैनेजिंग द पेशेंट विद रिफ्रैक्टरी वेरिसियल ब्लीडिंग। ERCP is now commonly used for the biliary stricture and choledocholithiasis. Coronary angioplasty and percutaneous coronary intervention used for the CABG have decreased the need for the CABG and the use of PPIs। अच्छा, एक और कंडीशन है जैसे कि PUD, ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़। तो ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के लिए रादर देन आप एंट्रेक्टमी करें या वेगोटमी करें, तो उसमें आप कॉम्बिनेशन ऑफ PPI विद हेलिकोबैक्टर ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स, सही है। तो ये इंटरवेल ट्रीटमेंट, हालांकि हम अक्सर ये होता है ना, हम कभी अनरीजनेबल हो जाते हैं कि पहले सर्जरी के लिए क्यों नहीं लाए, तो एक्चुअली पहले सर्जरी से पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सर्जन को डील करनी होती हैं, ठीक है। तो वो नॉन सर्जिकल इंटरवेंशंस होती हैं, वो उसका टाइम चल रहा होता है। पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग, गुड। In patient with cirrhosis, liver failure is the most common cause of the post-operative death. Fine. बस अब से ऑनवर्ड मेरा ख्याल है कि अब कंक्लूड कर रहे हैं हम, ठीक है। कोई चीज़ समझ में नहीं आए बीच में रोक लेना। Hepatocellular injury is the most common due to effect of anesthesia, intraoperative hypotension, sepsis and viral hepatitis. There is very low threshold in generally हम बहुत लो थ्रेशोल्ड रखते हैं इन मरीज़ों को ICU में भेजने के लिए, और रखना भी चाहिए, इट इज़ जस्टिफाइड, ठीक है, क्योंकि ये पेशेंट कॉम्प्लिकेट भी करते हैं, ठीक है। इट इज़ इसमें आपसे कोई नहीं सवाल करेगा अगर आप इनसे थोड़ा सा लो थ्रेशोल्ड रखना पड़ता है। पेशेंट मस्ट बी ऑब्जर्व क्लोजली फॉर द साइन ऑफ क्या डिकम्पनसेशन होगी, तो हम क्या देखेंगे,
जो लिवर की, हाँ देखो ये हम वर्ड्स जो पढ़ते हैं ना वो अभी हम फिर पढ़े ही रह जाते हैं। आपको सोचना ही होता है कि पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा। तो अगर इंसेफ्लोपैथी हुई तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, होता है ना, मैडम एनेस्थीसिया दिया उठा ही नहीं मरीज़, है ना, और तो किसी तरीके से नहीं करेगा। जॉन्डिस है, जॉन्डिस तो दिख ही जाएगा, लेकिन और किस तरीके से प्रेजेंट करेगा, वर्सनिंग ऑफ जॉन्डिस हो गया, इंसेफ्लोपैथी हो गई, साइटीज़ हो गया, क्वेक्लोपैथिक हो गया, DIC में चला गया पेशेंट। तो ये वो टर्म्स हैं जो कि हम आए दिन हम रोज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअली किसी डिजीज़ प्रोसेस से ही एसोसिएटेड होती हैं। Sedative and the pain medication should be carefully titrated. We have discussed about it. Benzodiazepine can be particularly problematic in patient predisposed to hepatic encephalopathy. Again, कोशिश करें अवॉइड करें, देना बहुत ज़रूरी है, तो वेरी टाइट्रेटेड डोजेज आप कंसिडर करें। थोड़ा सा देंगे वही घूमता रहेगा। ओके, पुअर स्टूलिंग फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू पोस्ट ऑपरेटिव ILS, नारकोटिक और immobility related common constipation treated डिस्पाइट लैक्टुलोज डोजिंग आप कंट्रीब्यूट टू, ये हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं इंसेफ्लोपैथी में, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि हमें इसे प्रिवेंट करना है। रीनल फंक्शन शुड ऑल्सो बी मॉनिटर्ड बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ द हेपेटोरीनल सिंड्रोम एंड द फ्लूइड शिफ्ट्स दैट अकर ड्यू टू सर्जरी। These patients should also be monitored for the surgical site complications. Surgical site infection हो गया, ठीक है, bleeding हो गई, dehiscence हो गए. It is now recognized that elevated INR in the setting of chronic liver disease, अक्सर ये बोलते हैं ना कि इसका तो INR इतना है, इससे ये पी नहीं होगा, इसका तो INR इतना है, इसको TBT नहीं होगा. This thing is not applies in patient with liver disease. Don't say this, ठीक है. A bleeding patient even with deranged INR patient could have DVT and PE both, ठीक है. तो वो उसको आप यूँ नहीं इग्नोर करना. अगर आपको लग रहा है कि रिस्क फैक्टर है DVT का और आपको लग रहा है क्लिनिकल ग्राउंड्स के ऊपर या कोई ऐसी कंडीशन है कि हाँ इसे DVT हो सकती है, लेकिन साथ में आप देख रहे हैं INR तो इतना है, नहीं हो ही नहीं सकती, नो डोंट कंसिडर दिस थिंग. DVT हो सकती है, ठीक है. तो वो INR से कंफ्यूज नहीं होना है. सीरियस डिकम्पनसेशन सिरोसिस, ये DIC कर लिया हमने, ओके, ठीक है. Surgery in a patient with liver disease, especially end-stage liver disease with cirrhosis and portal hypertension, pose a formidable challenge for all physician involved. Mainly आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है? मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की, जो कि हमें यहाँ पर बहुत मुश्किलों से मिलती है. सिर्फ इसकी वजह से हम स्टक हो जाते हैं. तो ऑलमोस्ट हर केस में आपको मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की ज़रूरत है, लेकिन स्पेशली इस केस में तो है ही. The cornerstone of the perioperative management and medical treatment of the complication of the liver disease, including coagulopathy, ascites, encephalopathy, and malnutrition. So, surgical is not the definitive treatment. Don't rush for it without having treatment of these conditions. If you are going to rush for it, the outcome is worse. हम चाहते हैं मरीज़ को वाकई में बचाना ना, तो फिर हमें उसकी कोएगुलोपैथी को इम्प्रूव करना है. नहीं हो रही करेक्ट, ठीक है, नहीं हो रही, डिजीज़ है, पर इम्प्रूव हो जाएगी, एसाइटिस इम्प्रूव हो जाएगी, एंसेफ्लोपैथी बेटर हो जाएगी. मेल न्यूट्रिशन स्टेटस, आप न्यूट्रिशनल स्टेटस को उसका बूस्ट कर सकते हैं. अटेंशन मस्ट ऑल्सो बी पेड टू रिस्क फैक्टर फॉर द इन्फेक्शन एंड द रीनल डिसफंक्शन आफ्टर सर्जरी. बेसलाइन रीनल डिसफंक्शन को जहन में रखना है, पेरी ऑपरेटिव फेज में रीनल डिरेंजमेंट को जहन में रखना है, सारे थ्रू आउट फेज में इन्फेक्शन हो सकता है, ये जहन में रखना है. इन्फेक्शन हो सकता है, क्यों, मैं वूंड पे नहीं जाऊँ, मैं क्या किस लिए बोल रही हूँ, सेप्सिस हो सकता है, ठीक है, पेशेंट सेप्टिक हो सकता है. तो मैं अपने पॉइंट पे अगर देखूँ, जैसे सर्जन है तो वो सोचेगा वुंड डिहीसेंस हो गई, ये हो गया, ठीक है, वो प्राइमरी ये होता है, लेकिन ये जब इन्फेक्शन और ये इसका जिक्र आ रहा है तो आपके दिमाग में फ़ौरन फिर सेप्सिस का भी आना चाहिए. सेप्सिस, कोएगुलोपैथी एंड इमरजेंसी सर्जरी आर मोस्ट स्ट्रांगली को रिलेटेड विद द पोस्ट ऑपरेटिव मोर्टेलिटी. सबसे ज़्यादा इनका आउटकम ख़राब है. Established risk stratification such as CTP score, MELD score and ASA physical status should also be used when evaluating a patient with a liver disease. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. Now the surgery is contraindicated in patient with CTP class 6C, fine. High MELD score, ASA class 5. Acute hepatitis, severe coagulopathy, severe extrahepatic manifestations like acute liver failure, hypoxia and cardiomyopathy. इलेक्टिव सर्जरीज अनटिल अनलेस आप बहुत ही इमरजेंसी है, कोई ट्रू इमरजेंट केसेस हैं, हाँ ठीक है, उसमें जाएंगे जैसा भी पेशेंट होगा, पर ये कंडीशंस है. अवॉइड सर्जरी इफ पॉसिबल इन पेशेंट विद MELD स्कोर ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 और CTP क्लास B unless
दे हैव अंडरगोन अ थॉरो प्री ऑपरेटिव एवेल्युएशन एंड प्रिपरेशन। अगर प्रिपेयर होके आए, अब आपको प्रिपरेशन मालूम है क्या करनी है, आपको वो सारी कंडीशन देखनी होगी, इंसेफ्लोपैथी बेटर हो गए, साइटिस बेटर हो गए, कोएगुलोपैथी को मैनेज कर लिया है, उसके बावजूद अगर किसी का ये स्कोर आ रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, गो फॉर द सर्जरी। लेकिन अगर विदाउट प्रेपरेशन से क्या आ गया है पेशेंट और यू थिंक कि मेडिकल मैनेजमेंट हो सकती है उसकी, ये पेशेंट फर्दर इम्प्रूव कर सकता है, तो बेहतर यही है कि आप उसकी और प्रेपरेशन कराएं एंड देन गो फॉर द सर्जरी इफ इट इज़ नॉट इमर्जेंट। यूज कॉशन विद सेडेटिव एंड न्यूरोमस्कुलर एजेंट, ऑप्टिमाइज मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट विद सिरहोसिस, करेक्ट कोएगुलोपैथी, ये हमने डिस्कस कर लिया है। द गोल प्लेटलेट काउंट इज बिटवीन 50 to 100, but it depend on the surgery as well. Minimize ascites to decrease the risk of abdominal wall herniation, ये भी हमने कर लिया है। बेटर करें न्यूट्रिशनल स्टेटस को, परफॉर्म क्लोज पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग बाय, क्यों क्लोज पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग करें, क्योंकि ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो हमने पढ़ी हैं ये किसी भी टाइम वन आफ्टर अदर या एक साथ पोस्ट ऑपरेटिव फेज में आ सकती हैं, इवन विद वंडरफुल एनेस्थेटिक या इंट्रा ऑपरेटिव कोर्स। सर्जरी भी अच्छी से हो गई, एनेस्थीसिया भी अच्छे से हो गया, इमरजेंसी भी अच्छे से हो गया, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव फेज में हो सकता है। एडमिशन टू ICU may be appropriate after prolonged surgeries, intraoperative hypotension, excessive blood loss, cardiac और pulmonary surgery। इनमें से कोई भी कंडीशन है ICU, ये नहीं कोई पूछेगा ट्यूब निकाली, ट्यूब रखी, क्या हुआ था इंट्रॉप, मतलब these are not the question। ये कंडीशंस हैं, इट्स बेटर कि आप ICU में पेशेंट को शिफ्ट करें, उसको इमीडिएट पोस्ट ऑफ फेज में मॉनिटरिंग की नीड है। मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ अक्यूट लिवर फेलियर इंक्लूडिंग वर्सनिंग ऑफ जॉन्डिस एंसेफ्लोपैथी एसाइटिस। रीनल फंक्शन पोस्ट ऑफ हम मॉनिटर करते रहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मैलिटी होगी तो उसे करेक्ट करें। एनी क्वेश्चन? वो आप डिपेंड कर रहा है कि एसाइटीज़ है और कितना लॉस है। वो एसाइटीज़ जो है उन्होंने इंट्रॉप अगर ड्रेन किए तो फिर आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, हाइपोपरफ्यूज नहीं होने देंगे हम। अच्छा ये देने, ये सारी चीज़ें तो उसकी टोटल कंडीशन के ऊपर, पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, उसकी क्रिएटिनिन, उसकी रीनल प्रोफाइल क्या है, वो सारी कंडीशंस को देखिए ही करेंगे, ठीक है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ लिवर से रिलेटेड है वो ये है कि आपको उसे रिप्लेस करना है, उसे इग्नोर नहीं करना। एनीथिंग? सांस